हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पास क्विज चैनल। आज हम कॉस्ट काउंटिंग के नॉन इंटेग्रल या कॉस्ट लेजर काउंटिंग सिस्टम बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आता है एग्जाम में। व्हाट इज मीन बाय नॉन इंटेग्रल या कॉस्ट लेजर और इसके जनरल एंट्रियाँ बुक्स में क्या पास करो, और वो क्वेश्चन की आज हम लॉन्ग डिस्कस करेंगे। नॉन इंटेग्रल या कॉस्ट लेजर काउंटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? नॉन इंटेग्रल या कॉस्ट लेजर वो सिस्टम होता है जहाँ पर कॉस्ट की बुक्स और फाइनेंशियल की बुक्स की दोवें की है अलग अलग रखी जाती है। मीनस ਜਿਹੜੇ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੌਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਜਾਂ ਕੋਸਟਲੈਸ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਸਟ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨੌਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਜਾਂ ਕੋਸਟ ਲੇਜ਼ਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕੋਸਟ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕੋਸਟ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੁੱਕਸ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨੌਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਸਟ ਲੇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਨੌਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੋਸਟ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੁੱਕਸ ਕੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੰਟੈਗਰਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨੌਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਜਾਂ ਕੋਸਟ ਲੇਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਕੋਸਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ आर कैप्ट सैपरेट द सिस्टम इसका नॉन इंटैगरल ਜਾਂ ਕੋਸਟ ਲੇਜ਼ਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਸਟ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਨੌਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਜਾਂ ਕੋਸਟ ਲੇਜ਼ਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਦ ਕੋਸਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਰ ਇੰਟਰਗ੍ਰੇਟਡ ਦ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਕਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਸਿਸਟਮ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਸਟ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੁੱਕਸ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇੰਟਰਗ੍ਰੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਣਗੇ? ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਡੈਬਿਟ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਗੀ। ਹਾਊਐਵਰ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੋਟ ਡੈਟ ट्रांजैक्शन आर एंटर ऑन द बेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। एवरी डेबिट मस्ट हैव अ कोरस्पोंडिंग क्रेडिट। भी जी ट्रांजैक्शन पर डेबिट होते मस्ट कोरस्पोंडिंग की होगी? क्रेडिट होगी। इसी तरह आप कह सकते हैं भी नॉन इंटैगरल सिस्टम वो सिस्टम होंगे जिथे कोस्ट ते फाइनैंशियल बुक्स की अलग अलग रखी जाती हैं, ट्रांजैक्शन दोवें की अलग अलग रिकॉर्ड की जाती हैं। उन्होंने किहड़ा सिस्टम कहा जाता है? कोस्ट लेजर या नॉन इंटैगरल सिस्टम कहा जाता है। हुण आपां की है जनरल एंट्रियां की आपां सिखांगे भी किस तरह आपां की है रिकॉर्ड करनी है बुक्स दे विच। ठीक है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੁ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵੀ ਇਹ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਟਰਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਸਟ ਲੇਜ਼ਰ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੇਜ਼ਰ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਬਈ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਆਲ ਇੰਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਸੈਲਫ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਬਾਈ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਦੇयर ਏ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਫॉर ਈਚ ਆਫ ਦ ਅਦਰ ਲੇਜ਼ਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਅਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਸੈਲਫ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਬਾਈ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਦੇयर ਦ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਫॉर ਈਚ ਆਫ ਦ ਅਦਰ ਲੇਜ਼ਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਸੈਲਫ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਲੇਜ਼ਰਸ ਤੇ। ਸਟੋਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਟੋਰ ਲੇਜ਼ਰ ਉਹ ਲੇਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਟੋਰ ਲੇਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਜਾਊਗਾ? ਸਟੋਰ ਲੇਜ਼ਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 'ਚ ਆਲ ਦਾ ਦਿਸ ਕੰਟੇਨਸ ਆਲ ਦਾ ਸਟੋਰ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਪਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ओपन किया जाऊ फॉर ईच आइटम ऑफ स्टोर। भी जी आइटम होगी ये स्टोर लिए की जाऊगी, ओपन की जाऊ। इसी तरह वर्क इन प्रोग्रेस लेजर द कंटेन्स ऑफ अकाउंट्स जी अपने को दिस कंटेन्स अकाउंट ऑफ वेरियस जॉब। ये अलग अलग जॉब के लिए की जाती है? तैयार की जाती है अकाउंट की कंटेन किए जाते हैं। ईच जॉब
यूनिट या प्रोसैस इज गिवन ए जॉब नंबर एंड सैपरेट अकाउंट इज ओपन फॉर ईच जॉब ਲਈ ਕਹੇ ईच जॉब ਜਾਂ यूनिट ਜਾਂ प्रोसैस कोई भी अपने को की है वर्क इन प्रोग्रैस कोई भी काम होवे ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ अपने को सैपरेट अकाउंट की ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ओपन ਕੀਤਾ ਜਾਊ किस ਲਈ हरेक जॉब ਦੇ ਲਈ किस ਲਈ हरेक जॉब ਦੇ ਲਈ जिन्ना भी अपने को काम हो। इसी तरह फिनिश्ड गुड्स लेजर कैन दिस कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स जिन्हें भी ਉਹ ਤਾਂ वर्क इन प्रोग्रैस ਚ ਆਣਗੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁड्स ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁड्स ਲੇਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁड्स ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਚ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁड्स ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਫॉर ਈਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਹਰੇਕ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੋਸਟ ਲੇਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੇਜ਼ਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਟੋਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਈ ਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗਈ वर्क इन प्रोग्रेस की है जो वर्क इन प्रोग्रेस रिलेटेड जॉब होती है उससे संबंधी सारी जॉब अकाउंट की ओपन किए नहीं फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट हैं जो अकाउंट होंगे सारे ये की ओपन किए जाएंगे। नैक्सट की आ गया अपने को ये होर कि कंट्रोल्स अकाउंट्स होंगे है अपने को पहला आ गया जनरल लेजर एडजस्टमेंट केड़ा आ गया अपने को जनरल लेजर एडजस्टमेंट जो कि कोस्ट लेजर की सारी की है ये पार्ट है जिन्हों मुख बही खाता कहा जाता है क्योंकि सारे ते की करता है कंट्रोल करता है कौन कोस्ट लेजर की करूगा सारे ते की करूगा कंट्रोल करूगा। जनरल लेजर एडजस्टमेंट होंदा है भी जे तुसी कोई भी मटीरियल खरीदते हो चाहे बेचते हो चाहे खरीदते हो ठीक है चाहे तुसी कोई वेजेस दिती है चाहे नहीं दिती मतलब जो आप कोई मटीरियल खरीदते हैं या उधार खरीदते हैं ठीक है चाहे बेचते हैं वो अपने कोई ना कोई जो कैश ट्रांजैक्शन होंगी है वो जा की होंगे कोई उधार मतलब कोई क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे जा की होंगे अपने को डेटर्स क्रिएट होंगे हैं उन्होंने आप रिप्लेस उन्होंने जगह ना कैश लिखना है ना कोई डेटर लिखना है ना कोई क्रेडिट लिखना है। जो आप जनरल एंट्री पास करांगे जो आप जनरल एंट्री पास करांगे उदों ना तो आप कोई कैश की टर्म होनी उत्ते ना ही कोई डेटर्स क्रिएट करना ही क्रेडिट वो लिए आप सिर्फ जिथे भी वो डेटर क्रेडिटस डेबिट क्रेडिट होंगे वो लिए आप किहड़ा अकाउंट ओपन करना है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की कर देना ओपन कर देना है। जे तुसीं सपोज करो तुसीं मटीरियल परचेज किया है कैश कर लिया तो तुसी की होना मटीरियल जाऊगा कि स्टोर लेजर च जाऊगा ठीक है तुसी मटीरियल परचेज कर लिया तुसी की एंट्री वादोगे फिर स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट भी थोड़े को मटीरियल आ गया चाहे तुसी कैश खरीदया चाहे तुसी उधार खरीदया जे कैश खरीदा तुसी लिखोगे टू कैश अकाउंट नहीं तुसी टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट ओपन हो जाओ तुसी ना तो उत्ते कैश पाना चाहे तुसी उधार खरीदा तुसी सन्ड्री क्रेडिटस लिखोगे की लिखोगे तुसी टू सन्ड्री क्रेडिटस नहीं लिखोगे तुसी जनरल लेजर एडजस्टमेंट लिखोगे। मैं तुहानू स्टार्टिंग दे विच ही कहा सी जनरल लेजर एडजस्टमेंट भी वो अकाउंट होंदा है जिहड़ी अपने कोल के कैश नाल रिलेटेड ट्रांजैक्शन होण चाहे उधार नाल रिलेटेड आपां अकाउंट की ओपन करना जनरल लेजर एडजस्टमेंट करना उहदी थां ते कैश की जगह या उधार की जगह ठीक है चाहे अपने उधार दिता है चाहे उधार अपने की है लैता है ठीक है किहड़ा अकाउंट ओपन हो जाए जनरल लेजर एडजस्टमेंट। इसी तरह जो आप कोई वेजेस पे कर रहे हैं कोई लेबर नूं कि आप कोई दिहाड़ी दे रहे हैं आप दिहाड़ी देती आप कैश पे करता या देनी है क्रूड है तां भी किहड़ा ओपन होगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट होगा किहड़ा होगा इत्थे कोई अपने कैश की एंट्री नहीं रिकॉर्ड करनी नॉन इंटैगरल दे विच किहड़ी एंट्री नहीं रिकॉर्ड करनी ना कैश रिकॉर्ड करनी ना कोई सन्ड्री डेटर रिकॉर्ड होणगे ना ही सन्ड्री कैट उहदी थां ते किहड़े आ जाणगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट आजू की आजू उहदी थां ते की आजू जनरल लेजर एडजस्टमेंट आजू। इसी तरह स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट उत्थे ओपन होगा जिथे आप मटीरियल नूं की करांगे इशू करांगे जे मटीरियल रिटर्न आप सप्लायर नूं करना उत्थे भी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट की होगा ओपन होगा। इस तरह वेजेस कंट्रोल अकाउंट जो आप कोई भी वेजेस कंट्रोल अकाउंट की है लेबर नूं कोई दिहाड़ी देनी है तो आप किहड़ा अकाउंट ओपन करांगे वेजेस कंट्रोल अकाउंट की करांगे ओपन करांगे चाहे अपने दिहाड़ी देनी है चाहे नहीं दिती तां भी किहड़ा वेजेस कंट्रोल अकाउंट ओपन होगा। और तुसीं देख लियो मैं तुहानूं दस देना जे अपने कोल वेजेस डायरैक्ट वेजेस है जे अपने कोल की है डायरैक्ट वेजेस है तो वर्क इन प्रोग्रैस लई हुंदी है किहदे लई हुंदी है वर्क इन प्रोग्रैस लई। जे अपने कोल इनडायरैक्ट वेजेस है तो ओवरहेड लई हुंदी है आप मैं तुहानूं दस्सिआ भी ओवरहेड की हुंदे सारे इंडायरैक्ट होंगे है वो जो सारे की होंगे है ओवरहेड का मीनिंग समझ लो ओवरहेड वो सारे खर्चों का जोड़ होंगे है इंडायरैक्ट मटीरियल इंडायरैक्ट लेबर इंडायरैक्ट एक्सपेंसिस सारे इंडायरैक्ट प्रत्यक्ष खर्चों के जोड़ नूं ही की कहा जाता है ओवरहेड कहा जाता है। इस करके कहते जो डायरैक्ट वेजेस सीधा वर्क इन प्रोग्रैस से ट्रांसफर करना है जो इंडायरैक्ट वेज वो रिस्पैक्टिव ओवरहेड से ट्रांसफर करेंगे कि ट्रांसफर करांगे रिस्पैक्टिव ओवरहेड अकाउंट वो तुहानूं दस्सांगे तुसीं ये तो
ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਓਵरहेड ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵरहेड ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਓਵरहेड ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਓਵरहेड ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਜਸ ਹੋਣਗੇ ਕੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਓਵरहेड ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ 'ਚ ਹੋਊ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਓਵरहेड। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ ਓਵरहेड ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਓਵरहेड ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਲੇਬਰ, ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਵरहेड ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਹੋਊ। ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ हैं ਤਾਂ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ 'ਚ ਜਾਊ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਓਵरहेड ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੀ ਜਾਊਗਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਜਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਸਿਮਿਲਰ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਾ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜਾਊ, ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਓਵरहेड। ਹੁਣ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਤੇ ਗਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨੂੰ ਕੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਦੇ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸਾਰੇ ਕੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਓਵरहेड ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੇਬਰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸਾਰੇ ਕੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਵरहेड ਅਕਾਊਂਟ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਵरहेड ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਥੇ ਓਪਨ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵरहेड, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਵरहेड, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਵरहेड ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆਫ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਸ ਕਲੋਇੰਗ ਸਟਾਕ ਆਫ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆਫ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈਸ ਕਲੋਇੰਗ ਸਟਾਕ ਆਫ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ। ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਵरहेड ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਲੇਜ਼ਰ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਲੇਜ਼ਰ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਵरहेड ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਦਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਦ ਓਵरहेड ਰਿਕਵਰ ਫਰਮ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ, ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੇਲ 'ਚ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੇਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਲ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਓਵरहेड 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ 'ਚ ਜਾਊ, ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ 'ਚ ਕੀ ਜਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਬਣਤੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਕੋਸਟ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾइम ਕੋਸਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾइम ਕੋਸਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵरहेड ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੈਕਟਰੀ ਓਵरहेड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਸੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਸੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਕਿਆ, ਸੇਲ ਹੈ। ਇसी तरह ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਸਿੰਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਰਚੇਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਊਗਾ ਕੀ 'ਚ, ਸਟੋਰ ਲੇਜ਼ਰ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਟੋਰ ਲੇਜ਼ਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਵਰਸ ਕਮਸ ਇਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਸ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਡੈਬਿਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੋਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਫॉर ਸਟਾਕ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੋਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਜਨਰਲ ਲੇਜ਼ਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਖਰੀਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਧਾਰ 'ਚ ਖਰੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਹੜਾ ਓਪਨ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਜਨਰਲ ਲੇਜ਼ਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋਬ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋਬ ਲਈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋਬ ਲਈ ਕੀ ਓਪਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋਬ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋਬ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋਬ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਜਨਰਲ ਲੇਜ਼ਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸਟਾਕ ਪਰਪਸ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋਬ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਜਨਰਲ ਲੇਜ਼ਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ 'ਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟੋਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈंने ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਦੇਖੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ।
मटीरियल मैंने की करना है इशू करना है। जो डायरैक्ट मटीरियल वो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस से जाओ, मैं थोड़ा स्टार्टिंग जी टर्म समझाई सोच भी दसिया सी, जो डायरैक्ट मटीरियल वर्क इन प्रोग्रेस जाओ, इनडायरैक्ट मटीरियल की जाओ रिस्पैक्टिव ओवरहेड से जाऊगा। अपने हम डायरैक्ट मटीरियल मैं की जाऊगा वर्क इन प्रोग्रेस च। हुण देखो जो मैं मटीरियल खरीदा सी, मेरा मटीरियल कित्थे पिया सी, स्टोर लेजर च पिया सी मटीरियल। जो मैं खरीदा सी मैं डेबिट किया सी, हुण उत्थों ट्रांसफर करके मैंने की भेजना वर्क इन प्रोग्रेस से भेजना, क्योंकि मैंने मटीरियल इशू करन लगे हैं। मटीरियल इशू का मतलब मैंने मटीरियल जारी करना है, तो मैं स्टोर चो जारी करूँगा ना, स्टोर चो जारी करूँ फिर ही स्टोर का बैलेंस की है मेरे को घट होगा। ठीक है, जो उतो मैं इशू करूँगा तो उदों मैनू वो अकाउंट की करना पू, क्रेडिट करना पू, क्योंकि वो मैंने करनी है बैलेंस कटना है। तो की ट्रांसफर करना है वर्क इन प्रोग्रेस, चीज़ तुम ट्रांसफर करना उन्होंने डेबिट कर दोगे, चीज़ तुम करना है ट्रांसफर करना उन्होंने की कर दोगे डेबिट कर दोगे। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल काउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल काउंट, मैंने मटीरियल स्टोर चो की इन्ना इशू करके की वर्क इन प्रोग्रेस च भेजता, क्योंकि कितने भेजा है वर्क इन प्रोग्रेस के विच। क्लीयर हो गई एंट्री। दूजा इंडरैक्ट मटीरियल, दूजा आ गया इंडरैक्ट मटीरियल। हुण आपको पता है इंडरैक्ट भेजना कितने ओवरहेड नूं देना है, किनू देना अपने ओवरहेड जाऊगा कि स्टोर च जाऊगा। मटीरियल तो मेरा स्टोर च ही पे है, जो मैं मटीरियल खरीदा स्टोर में डेबिट किया मैं स्टोर क्रेडिट कर दूँ, क्योंकि मैंने इशू करता मटीरियल। तो हुण मैं रिस्पैक्टिव ओवरहेड कंट्रोल काउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल काउंट, क्योंकि जे मैं एक चीज़ डेबिट कर दूजी क्रेडिट करूँगा। ठीक है, हुण इन्होंने मैंने पता चल गया भी मैंने डायरैक्ट मटीरियल इशू करता, मटीरियल इशू करूँगा तो स्टोर लेजर च जाऊगा मटीरियल, तो उन्होंने क्रेडिट करना पऊगा जो उसका बैलेंस घटाना है। तो स्टोर लेजर मैंने क्रेडिट करता, मैं थोड़ा पहले भी दसता सी भी जो इंडरैक्ट मटीरियल रिस्पैक्टिव ओवरहेड तो दूजा की हो जू डेबिट रिस्पैक्टिव ओवरहेड की हो जाऊगा डेबिट हो जू टू स्टोर लेजर कंट्रोल काउंट। हुण मैंने सप्लायर नूं वापस करना है, माल की करना है सप्लायर नूं की करना मैंने वापस करना है, किनू करना है सप्लायर नूं माल मैंने की करना है वापस करना है। वो किस तरह करना है वो देखो ध्यान नाल। हुण मैं जो माल खरीदूंगा सप्लायर तो खरीद लिया, जो सप्लायर तो खरीदा सी मैंने तो एंट्री है भाई स्टोर लेजर कंट्रोल काउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, चाहे मैंने कैश खरीदा चाहे उधार च खरीदा हो। नैचुरल समान वो वापस करांगे जो अपने उधार च खरीदा होंगे आप वापस कर देंगे। ठीक है, चाहे की है अपने चाहे कैश खरीदा हो क्रेडिट अपन की है अपन नोट बना के भेज दिंदा है। ठीक है, वो आप की है अपने को आ जाता है नोट। ठीक है, इसी तरह हम अपने को देखो सप्लायर रिटर्न करता, जी अपने जो माल खरीदा सी वो आप स्टोर लेजर टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट पाए सी। हुण आप की कर देंगे जो सप्लायर नूं वापस करांगे माल तो वो एंट्री की बन जू, पहली एंट्री रिवर्स बन जू मैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट काउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल काउंट, टू स्टोर लेजर की बन गया कंट्रोल काउंट। ठीक है, चाहे अपने को दसो चाहे कैश हो चाहे उधार हो चाहे अपने उधार दिता हो लैना हो, आप अकाउंट कि ओपन करना जनरल लेजर एडजस्टमेंट, इसका पहली एंट्री की बन गई रिवर्स बन गई। मटीरियल रिटर्न शो फ्लोर, हुण अपने को देखो अपने को फैक्ट्री के विच पिया सी, फैक्ट्री तो कहा अपनी किसी स्पैशल मतलब ट्रीटमेंट वर्क इन प्रोग्रेस लिए भेजा सी किसी अगे शॉप से, तो उत्थों वापस आके आ गया, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस तो होके आया वापस कितों आके आया वर्क इन प्रोग्रेस। जो अपने वर्क इन प्रोग्रेस से ट्रांसफर किया, जो अपने की वर्क इन प्रोग्रेस अपने को देखो जो सप्लायर नूं आपां वापस किया सी माल, जो आप सप्लायर नूं वापस किया सी अपने को की हो गया स्टोर लेजर नूं की करता अपने क्रेडिट करता, क्योंकि स्टोर लेजर तो वग गया सप्लायर को वग गया माल, ताकि स्टोर लेजर की करना पाया क्रेडिट करना पाया। हुण इत्थे शो फ्लोर तो आया जिथे आप वर्क इन प्रोग्रेस सी, शो फ्लोर तो अपना आऊगा कितों गोदाम दे विच आऊगा, कितों आऊगा अपने को गोदाम, गोदाम मतलब अपनी स्टोर लेजर दे विच आऊगा। तो अपन की करो स्टोर लेजर च आ गया माल अपने को, जो अपने को क्वांटिटी वध जू मतलब स्टोर लेजर नूं डेबिट करना पऊगा फिर ही क्वांटिटी वधूगी। स्टोर लेजर कंट्रोल काउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल काउंट। इसी तरह मटीरियल ट्रांसफर जॉब टू जॉब नो एंट्री वादनी है तुसी जे जॉब टू जॉब ट्रांसफर किते नो एंट्री। इस तरह तुहानूं मटीरियल दी एंट्रियां बहुत सौखे तरीके नाल याद हो गया होणगियां। देखो भी की किया अपने मटीरियल परचेज कर लिया, मटीरियल परचेज से अपन पता की किया मटीरियल परचेज तो अपने कोई समग्री खरीदांगे तो अपने को स्टोर च जाओगे, स्टोर लेजर कंट्रोल काउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, चाहे कैश खरीदे हो चाहे अपने उधार खरीदी हो। जो स्पैशल जॉब का वर्क इन प्रोग्रेस से जाऊगा। इसी तरह जो अपने मटीरियल इशू किया है तो जो स्टोर लेजर डेबिट किया वो क्रेडिट हो जाऊगा। ठीक है, जो अपने इंडरैक्ट मटीरियल इशू किया तो वर्क इन प्रोग्रेस चो जाऊगा, जो इंडरैक्ट किया तो रिस्पैक्टिव ओवरहेड च जाऊगा। जो अपने सप्लायर नूं वापस करता तो स्टोर लेजर च जाऊगा, स्टोर लेजर चो क्वांटिटी घट जो तो क्रेडिट कर देंगे स्टोर लेजर नूं। तो ठीक है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट डेबिट टू स्टोर लेजर काउंट। इसी तरह कहते आप कि शो फ्लोर तो आया, शो फ्लोर तो अपनी गोदाम च आके डिगूगा, मतलब स्टोर लेजर का बैलेंस वध जू तो स्टोर लेजर कंट्रोल काउंट डेबिट टू की वादांगे आप वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल काउंट, क्योंकि कितों आया वर्क इन प्रोग्रेस तो है, कितों आया अपने को वर्क इन मटीरियल फ्रॉम जॉब टू जॉब की आ जाऊगा नो एंट्री, मटीरियल फ्रॉम जॉब टू जॉब की आ जाऊगा नो एंट्री। ये तो असी मटीरियल दी एंट्री। हुण अगे आ जाओ अपने को नैक्सट आ गया लेबर दी एंट्रियां। लेबर कौन होंदी है जिन्होंने आप की देनी होंदी है वेजेस देनी होंदी है, की देनी होंदी है वेजेस देनी होंदी है। हुण अपने को देखो लेबर च की है
कहते लेबर तो सैलरी वेजिस होंगी है, ये आप कि अकाउंट ओपन करांगे, वेजिस कंट्रोल अकाउंट ओपन करांगे। कि अकाउंट ओपन करांगे, वेजिस कंट्रोल अकाउंट। हूँ वेजिस को अपनी की सैलरी एंड वेजिस पे करती हैं, अपनी की पे करती है सैलरी तो की करती हैं वेजिस पे करती हैं। आप ओपन करांगे वेजिस अकाउंट, जिवें मटीरियल स्टोर लेजर ओपन किया सी, इसी तरह आप इन्हों की लेबर लिए की ओपन करांगे वेजिस कंट्रोल, जो उसी सैलरी वेजिस पे करती, चाहे तुम पे की है चाहे नहीं की। ये थोड़ा अकाउंट जनरल लेजर एडजस्टमेंट नहीं होगी, ना कोई कैश क्रेडिट होना है, ना कोई सनडरी क्रेडिटर्स, ना कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कुछ नहीं होना क्रेडिट। जनरल लेजर एडजस्टमेंट हो, बस तुम क्या सैलरी वेजिस पे करती, वेजिस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जे तुम यही दिहाड़ी थोड़ी डायरैक्ट लेबर है वर्क इन प्रोग्रेस से जाऊ, जो इंडरैक्ट है रिस्पैक्टिव ओवरहेड से जाऊगी। बस अपने को डायरैक्ट लेबर है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू की वादांगे आप हाँ भी कितों लेती है वेजिस कंट्रोल अकाउंट च लेती है, कितों लेती है वेजिस कंट्रोल अकाउंट च, क्योंकि वेजिस कंट्रोल अकाउंट च वेजिस नूं दो भागां च वंडता सी डायरैक्ट, क्योंकि उहदे च दो वेजिस सी डायरैक्ट वेजिस ते इंडरैक्ट वेजिस, जिन्होंने डायरैक्ट लेबर ते इंडरैक्ट लेबर भी कहते हैं। डायरैक्ट लेबर किनू जो वर्क इन प्रोग्रेस, इस करके मैंने वेजिस कंट्रोल अकाउंट चो जिहड़े पैसे सी मैंने की च कट के ट्रांसफर करते वर्क इन प्रोग्रेस से ट्रांसफर करते, क्योंकि डायरैक्ट लेबर तो अपनी वर्क इन प्रोग्रेस ली है तो इंडरैक्ट लेबर की रिस्पैक्टिव ओवरहेड में, इस करके वेजिस कंट्रोल अकाउंट जो दोनों के पैसे सी वो कट के उन्होंने ट्रांसफर करते, इस करके वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजिस कंट्रोल अकाउंट इन्ने अपनी वर्क इन प्रोग्रेस ली, बाकी के रिस्पैक्टिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजिस कंट्रोल अकाउंट। भी वेजिस कंट्रोल अकाउंट अपने की उन्हें की करता क्रेडिट करता तो उन्होंने की करता ट्रांसफर करता वर्क इन प्रोग्रेस से ट्रांसफर करता तो रिस्पैक्टिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट की करता अपने ट्रांसफर करता। इसी तरह अपने को आ गया ओवरहेड, की आ गया अपने को ओवरहेड। ओवरहेड किनू कहते ध्यान सुनियो, ओवरहेड होंगे जिस तरह अपने की किया होंगे खर्चे किए होंगे भी खर्चे आप किस तरह किए हैं खर्चे कि जर्नल्स एंट्रीज रिलेट टू ओवरहेड इंक्लूड एंड एक्रूड। हुण आपको पता है ओवरहेड लिए की ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट की होगा ओपन होगा, ठीक है। चाहे तुम एक्रूड कर ले जो एक्रूड या होने हैं या होणगे, देखो चाहे तुम पे किए है चाहे नहीं किए तो भी थोड़े को होगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की होगा ओपन होगा। इसलिए हम देखो अपने को चाहे कैश दिता चाहे उधार दिता चाहे पेंडिंग पे अपने आप जनरल लेजर एडजस्टमेंट क्रेडिट करना है, ठीक है। हम आप अकाउंट तो ओवरहेड कंट्रोल जिमें अपने को मटीरियल स्टोर लेजर होया सी, लेबर ली की है वेजिस कंट्रोल अकाउंट होया सी, उन्हें ओवरहेड लिए ओवरहेड कंट्रोल हो तो रिस्पैक्टिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और रिस्पैक्टिव ओवरहेड तो बनता है क्योंकि अपने को पता है वर्क इन प्रोग्रेस होंगे, ठीक है। अपने को होर किहड़े होंगे है आई एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है, सैलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, ठीक है, सारे होंगे। हम अपने रिकवर कर ले की कर ले रिकवर कर ले वक्रे वक्रे हेड किहड़े वर्क इन प्रोग्रेस ओवरहेड, ठीक है। अपने को आ गया वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जी की है अपन पता है जो वर्क इन प्रोग्रेस है वह फैक्ट्री ओवरहेड च होंदा है, जो फिनिश्ड गुड्स है वह एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड च होंदा है, तो जी अपनी को कॉस्ट ऑफ सेल कदों निकलती है सैलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो बाद निकलती है। इन्होंने तीनों डेबिट करते अपने, फिर टू किनू करता रिस्पैक्टिव ओवरहेड कंट्रोल का भी वो बैलेंस चक के इन्होंने ट्रांसफर करता किचे वर्क ओवरहेड वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन वक्त करते होंगे, तो जी अपने को सैलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होंगे कॉस्ट ऑफ सेल निकलती होंगी है। ये तीनों डेबिट करके कि चो कट ले रिस्पैक्टिव ओवरहेड चो कट ले, फिर दे भी अंडर अब्जॉर्प्शन भी घट अवशोषण तो वध अवशोषण जे घट होया तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करके कॉस्टिंग टू रिस्पैक्टिव ओवरहेड, मतलब उस वक्त अपने को घट खर्चे की है अवशोषण किए होंगे घट पाए गए होंगे, जे खर्चे वध अवशोषण किए गए तो रिस्पैक्टिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो अपने को उदों की प्रॉफिट में कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, जे अपने घट पाए गया तो उदों प्रॉफिट की कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करने का मतलब होंगे भी अपने को लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट करने का मतलब कि होंगे इतने कि प्रॉफिट हो गया, तो बस ये चीज़ चल रही है अंडर वक्त की है लॉस ओवर मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई लॉस हमेशा डेबिट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिस्पैक्टिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ओवर एब्जॉर्प्शन मीनस रिस्पैक्टिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का। बस इनू चीज़ याद रख लो भी जो ओवर एब्जॉर्प्शन होगा तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होंगे, जो अंडर होगा और लॉस होगा तो उन्होंने की करांगे डेबिट करांगे, तो रिस्पैक्टिव ओवरहेड तो होना ही होना है, जो एक चीज़ डेबिट दूजी की होगी क्रेडिट होगी। इसी तरह अदर्स जनरल एंट्रीज देख लो, फिर इतने की अपनी के बुक्स अकाउंट्स की होंगे क्लोज होएंगे, अपने को ये एंट्री पास करनी है। हम अपने को फिनिश्ड स्टॉक प्रोड्यूस होया कितना स्टॉक होया फिनिश्ड स्टॉक, हम जो वर्क ओवरहेड तैयार करते हो थले लिखा होंगे ना फिनिश्ड स्टॉक, तो आप लिखते होंगे भी आप जो वर्क ओवरहेड तैयार करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड आप लिखे होंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, अपने को वर्क कॉस्ट निकले जैसे एडमिशन ओवरहेड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। इसी तरह जो फिनिश्ड स्टॉक प्रोड्यूस है
ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁड्स, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁड्स ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਤਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੀ ਕੋਸਟ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁड्स। ਤਾਂ ਮੈंने ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁड्स, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡੈਬਿਟ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਬਿਟ ਕਰੀਦਾ। मैंने ਇਹ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁड्स ਲੇਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਮੈंने ਦੇਖੋ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁड्स ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁड्स ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਾਰਟ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹਦੀ ਪਾਰਟ ਆਊਗੀ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡੈਬਿਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁड्स ਸੋਲਡ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁड्स ਲੇਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਐਂ ਹੁਣ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੂੰਗਾ ਸੇਲ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸੇਲ। ਹੁਣ जो सेल आ गई, ਹੁਣ मेरे को सेल तैयार होगी भी हाँ मेरे को सेल च इन्ने सेल में इन्नी करनी है। ਹੁਣ जो सेल करोगे थोड़े को पैसा आऊगा, सेल करने ते की आऊगा थोड़े को पैसा आऊगा। वो पैसा किमें आऊगा ज़्यादा थोनों बेची होगी नगद का कैश आ जाऊ। जे उधार में संडी डैटर अपने क्या ना तो कैश रिकॉर्ड करना ना संडी डैटर, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਨਰਲ ਲੇਜਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਹੋਣੇ ਸੀ ਡੈਬਿਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਲੇਜਰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ, ਜਨਰਲ ਲੇਜਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ टू सेल अकाउंट। नैक्सट अपने को आ गया अपने गुड्स की बेचती हैं प्रॉफिट से बेचते हैं, जी अपने सेल की है ना प्रॉफिट से बेचती हैं। हूँ मैंने सेल चो कट के ट्रांसफर कि करना प्रॉफिट च करना मैंने, ठीक है। जो थोड़ा प्रॉफिट होया तो प्रॉफिट मैं थोड़ा पहले भी दस के भी क्रेडिट करना, जो लॉस है तो डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड मतलब सेल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का, मैंने क्या प्रॉफिट की करता क्रेडिट करता। नैट प्रॉफिट लिए की करना पऊगा, हूँ नैट प्रॉफिट वो होता जी अपने हथ च आऊगा तो मैनू की करूँगा कि है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दूंगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट की मेरे को कैश आ गया भी इन्ना मैनू की है प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगे क्या रिपेयर वर्क ली की है, जो अपने कोई खर्चा किया रिपेयर ऑर्डर ली तो रिस्पैक्टिव ऑपरेट कंट्रोल अकाउंट हो जाऊगा। कोई स्पैशल ऑर्डर है तो कॉस्ट ऑफ सेल टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट आ जाऊ। फिर उस बाद जो तुम कहता ए टोटल कॉस्ट है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू सेल मतलब अपने सेल करती तो पैसे आ गए अपने को, ठीक है। सो फ्रेंड्स जो थोड़ा ये वीडियो बहुत वधिया लगी तो थोड़ा जनरल एंट्री कोई चंगी तरह समझ आ गया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करियो, सबसक्राइब करियो चैनल। जो कोई नवा परसन है प्लीज़ चैनल सबसक्राइब करो। इस तरह थोड़ा क्या कमर्स से इतने रोज़ रोज़ की मिलने टॉपिक दी वीडियो मिलनगियां। जो थोड़ा टॉपिक दी चैनल एंट्री पूरी चंगी तरह समझ आ गया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, वीडियो को अगे आदे फ्रेंड्स अगे क्या शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड्स।